everyone, welcome to Narayana Educational Institution. So students, what we are going to do, I'm going to take you through the formulas of all the chapters of grade 12th physics. Okay, so firstly, let's start with the very first chapter, that is going to be electric charges and fields. Okay, अब जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हमारे पास एक कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनमें से वी कैन से 90% ऑफ द चांसेस आर देयर जिनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. Okay, so quickly let's just go through all the formulas that are going to be there in this chapter. So firstly, what we have, so we can say that सबसे पहले हमारे पास charges की basic properties क्या हैं. So basic properties of charges. Then उसके बाद एक सबसे important law आता है, that is going to be the Coulomb's law, electric field, intensity, and उसके बाद एक आता है हमारे पास electric dipole और electric flux. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट आर गोइंग टू बी द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस. ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या है, दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस दैट मींस वी कैन से Q इक्वल्स प्लस माइनस ऑफ n टाइम्स E. n क्या है, where n is going to be the number of electrons and E is going to be the charge on an electron. Okay, then after this हमारे पास आता है conservation of charge. Conservation of charge हमें क्या बताता है, the total charge of an isolated system remains constant. That means it is going to change, it is not going to change with time. Okay, then उसके बाद आता है additivity of charge. Charges को हम normal addition करते हैं. That is what additivity of charge tells us, that total charge of a system is the algebraic sum, that is sum taking into account with proper sign convention of all individual charges in the system. That means अगर हमारे पास कुछ charges ऐसे हैं जो हमारे negatively charged है, okay, like we can say अगर हमारे पास electrons है वो negatively charged particles हो गए, okay, negatively charged subatomic particles we can say, तो वहां पर हम negative sign को भी consider करेंगे. okay, so जैसे हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 2 3, ओके, यहाँ पर ये है माइनस ऑफ 3 कूलम, ये है माइनस ऑफ 2 कूलम्स और ये है 5 कूलम के चार्ज. ओके, हमारे पास ये 3 चार्जेस हैं, हमें यहाँ से नेट चार्ज बताना है. तो नेट चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 3 कूलम प्लस माइनस 2 प्लस 5. सो दैट मीन्स वी कैन से क्यू नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू नेट वुड बी इक्वल टू 0 itself, because minus 3 minus 2, that is going to give us minus 5, minus 5 plus 5 is going to be 0. So that means ये charges हमारे कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, they do follow additivity of charge. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास Coulomb's law. Coulomb's law हमें क्या बताता है, that force is going to be directly proportional to the product of charges and it is going to be inversely proportional to the square of distance between them. अब यहाँ से ना एक न्यूमेरिकल like in most of the cases न्यूमेरिकल्स क्या आ जाते हैं, देखो जैसे हमारे पास 4 charges है, ठीक है, in the shape of a square itself. लेट्स से यहाँ पर है माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर है 2q चार्ज, यहाँ पर है q चार्ज एंड यहाँ पर भी है, यहाँ पर है नेगेटिव ऑफ 2q चार्ज. ओके, दे कैन आस्क यू टू फाइंड आउट द फोर्स, electric force onto negative of q charge. Okay, they can ask you to calculate the force on negative of 2q charge. So basically ये वाली questions यहाँ से numericals mostly आते हैं. Okay, similarly we can say कि वो triangle के form में दे देंगे आपको. Okay, कि let's say that we have a triangle और अब इस ट्राइंगल में हमारे पास चार्जेस क्या है, सो माइनस ऑफ क्यू, माइनस ऑफ 2q एंड लेट्स से माइनस ऑफ अगेन माइनस ऑफ q. अब वो कहते हैं एक सेंटर पर चार्ज प्लेस्ड है q, दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टू दिस चार्ज. Okay, so you should know, so for that you have to take help of what, you have to take help of Coulomb's law itself. Okay, ठीक है, तो अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद we have then we have Coulomb's law के अंदर एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होता है. ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है हमें, दैट ओके, सो इट इज गोइंग टू बी द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस वुड गिव अस द टोटल फोर्स. सबके वेक्टर फोर्सेस करते जाओ, सिंस दिस फोर्स इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, सो व्हाट वी कैन से कि जो F नेट आएगा ना हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ F1 vector plus F2 vector plus and it so on up to like that. Okay, and इसके बाद देखो, so forces between two charges is unaffected by the presence of other charges. ठीक है, unaffected रहेंगे other charges की वजह से. So forces between two vectors. So basically उन दो charges से ही जो force हमारा generate होगा सिर्फ उस पर depend करेगा, irregardless of जो charges हमारे nearby surround करेंगे.
ओके देन इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक सो यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंट r फ्रॉम a point charge q is given by electric field equals 1 over 4 pi epsilon naught q over r square। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक Coulomb's law was important, Coulomb's law से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मोस्टली आते हैं। Okay, similarly we have this formula which is going to be important. Now इसके बाद देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज भी होती है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज पर वो फिनिश होंगे। उसके बाद देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट सो दे डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप, क्लोज लूप नहीं बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके सो दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे विल जस्ट एमिट एट, और वी कैन से दे आर गोइंग टू एंड एट नेगेटिव चार्ज। ओके देन नेक्स्ट इज टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों? क्योंकि हमारी डायरेक्शन वहां से पता लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ओके सो व्हिच इज व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट और वी कैन से नेवर क्रॉस ईच अदर। ओके अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट इज गोइंग टू बी आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या है? डाइपोल का सिंपल सा मतलब है हमारे पास दो चार्जेस होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट उनके सो वी कैन से उनके पोलैरिटीज डिफरेंट होंगी, पोलैरिटीज और वी कैन से उनके उन पर चार्जेस डिफरेंट होंगे। लाइक वन इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव चार्ज, अदर वन इज गोइंग टू बी द नेगेटिव चार्ज, बट उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। ओके सो एवरी डाइपोल इज एसोसिएटेड विद अ डाइपोल मोमेंट p whose magnitude is equal to the product of magnitude of either charge, that means q itself magnitude। तो let's say मैंने अभी क्या बोला कि magnitudes equal होंगे, magnitudes equal होंगे तो let's consider कि हमारे पास magnitude क्या है, q है। Okay and the distance 2a between charges is given by p equals q times of 2a, ठीक है। so electric dipole क्या हो जाता है हमारे पास, that is going to be the product of the distance between two charges। okay अब ये जो यहाँ पर 2a है ना, 2a is the total distance, it's not like that a is the distance। total distance है कहां से कहां तक का, total distance between two charges, ठीक है। and it's not, so it is not the distance, a is not the distance between two charges, 2a ही distance है। so कभी कभी questions में वो ऐसे बोल देते हैं आपको numeric in the form of numericals कि the distance between two charges is this much, let's say 4 meters। तो वहां पर आप 2 times नहीं करोगे, वहां पर you have to take it as 4 meters itself। okay देन उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, देन डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, सो हाउ इज इट गोइंग टू लाइक व्हाट आर गोइंग टू बी द डिफरेंट फॉर्मूला, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट आल्सो। ठीक है सबसे पहले बात करते हैं इक्वेटोरियल। अच्छा यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन एंड एक्सियल लाइन ऐसे हैं जिनकी डेरिवेशंस भी आती हैं। ओके यहां से डेरिवेशंस आ सकती हैं, सो यू नीड टू मेक श्योर कि इनकी डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए। सो फॉर्मूला क्या होता है, सो इफ इन केस वी टॉक अबाउट एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी twice of k, so or we can also say twice of p over 4 pi epsilon naught r cube। so this is going to be in the vector form we can also say, or like अगर हम vector form में भी लिखना चाहते हैं तो that also we can write it down। ठीक है अब देखो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया in case on axial line, similarly on equatorial line it's going to be p over 4 pi epsilon naught r cube, or you can also write it as that E is going to be kp over r cube in case of equatorial line, but in case of axial line it's going to be E equals twice of kp over r cube। ठीक है so this is going to be in case of your axial line itself। ठीक है इसके बाद हमारे पास आता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इन एन एक्सटर्नल फील्ड एक्सपीरियंसेस, वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और ये जो टॉर्क होती है ना टाउ इक्वल्स p क्रॉस e। So, अब अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है so that means we can simply write it as PE sin theta, PE sin theta itself। ठीक है इसके बाद नेक्स्ट इज गोइंग टू बी आर, अब चलो अब चलते हैं अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। सो सबसे पहले लेट मी जस्ट इरेज दिस। या सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बताता है, जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
क्रॉसिंग दिस एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टेल्स अस। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से रिलेटेड इसकी एप्लीकेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। सो देखो गॉस थ्योरम हमें क्या बताती है, दैट फाई इक्वल्स क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल्स Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इटसेल्फ, ठीक है। सो यहां पर इसकी स्टेटमेंट क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस एस इन वैक्यूम। अच्छा, अब एक और चीज को देखो, यहां पर द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू बी, यहां पर ये क्या है हमारे पास, क्लोज सरफेस है, ठीक है। ये कैसा इंटीग्रल है हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी अ सरफेस इंटीग्रल, इट्स नॉट लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रल्स क्या है, सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट, बिफोर एप्लीकेशंस पर मूव करने से पहले सबसे पहले इन इंटीग्रल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं, और वी कैन से इनके चार्ज डेंसिटीज के बारे में पढ़ते हैं, लाइक लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज क्या है। लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल्स Q over L, okay, which is denoted with lambda. Then we have surface charge density, that is denoted with sigma. Sigma equals Q over A area. Okay, then volume charge density, rho equals Q over V, V being the volume. अब चलते हैं हम अपनी इनकी एप्लीकेशंस की तरफ। सबसे पहली एप्लीकेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल एट, अब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर हम बात कर रहे हैं, एट अ पॉइंट outside the shell, that is r is going, small r is greater than r, so उस टाइम पर हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, that electric field E equals, so this is going to be, we can say rho r cube over 3 epsilon naught r square, ठीक है। तो यहां से एक चीज पता लग गई, that E is going to be inversely proportional to this r square, ठीक है। then अगर अब हमें onto the surface की बात करनी है, onto the surface, it's going to be, E is going to be inversely proportional to the square of radius. And similarly, if in case we have to talk about inside electric field is going to be 0 itself. ठीक है, इसके बाद similarly electric field due to a uniformly charged infinite thin plane sheet. So उसके लिए electric field कितना होता है? So for that electric field is going to be sigma over 2 epsilon naught. एंड सिमिलरली अगर हम हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी लैम्डा इक्वल्स 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर। अच्छा, अब एक और चीज देखो, इस पर बेस ना कभी कभी ग्राफ भी पूछ लेते हैं, ओके, और दे कैन आस्क यू इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, एमसीक्यू की फॉर्म में, लाइक ग्राफ कैसे बनेगा, सो ग्राफ इज गोइंग टू बी समहाउ लाइक दिस। देखो यहां पर क्या है हमारे पास, दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड, if in case we are talking about inside outside, and तो देखो हमारी कहां पर जीरो थी, where the electric field was zero, yes, any idea? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां है, inside the shell, correct, inside the shell electric field was zero, so that's why we can see that it's going to be a plane line itself, ठीक है। so that's what we have denoted it with dot, like we can simply say it's going to be somehow like this। ये क्या हो गई, ये हमारी inside की हो गई, okay, then after that we can say जब हमारी वैल्यू r पर पहुंच जाएगी, so that means onto the surface, so it's going to be like over here, and then it's going to be outside, okay. So students, these were the important formulas that were there in this unit, which is going to be electric charges and fields. I hope कि आप लोगों को सभी formulas के बारे में पता लग गया होगा। If in case you have any doubt related to any of the question, you can let us know in the comment section also, okay, and make sure to watch the next video also, because in next video we are going to take you through the second chapter formulas, okay. So till the time, bye everyone, take care and thank you so much.